ओके गाइस, सो दी लेट्स टॉक अबाउट द बजट कि कल बजट में क्या हुआ है। वी आर रिमेंबर गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट 2021-22. सो वी आर essentially talking about FY22. इन दी लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट लास्ट टू लास्ट क्लास कि हर साल में चार फिगर्स होती हैं। वो कौन कौन सी फिगर है? इस साल बजट एस्टिमेट्स हैं। Then you have revised estimates of 2020-21, जैसे हमने बात करी थी। Then actuals of 2019-20. Why? Because this got over on 31st March 2020, and this will get over at 31st March 2021. So these are just revised figures. अगले साल इसका actuals आ जाएगा, and this is what you are expecting. And this is a comparison of what you estimated and what you have got after 10 months. So 10 months में आपका अभी क्या क्या सिचुएशन है ये है, बट 10 months के बेसिस के ऊपर what you are estimating for the entire year. So this is for this estimate. So this is something like the estimate what you are going to, the position that you are going to be on 31/3/2021. ये उसका एस्टिमेट समथिंग लाइक योर वाई हैट कि ये वाई हैट है आपका। ठीक है, तो ये आपकी फिगर्स है। लेट्स सी कि इंडिया के अंदर हमारे केस में क्या हुआ। जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैड स्टडीड in the previous session. Now this we had done. Remember the structure में मैंने क्या बताया था? You have two sides, one is your receipt side, the other is your expenditure side. ठीक है, just like a household, you have income, receivables and expenditures. Your receipts are of two types: your revenue receipts which are recurring in nature, जो हर साल होगा, and your capital receipts which will be one time, जो one time या फिर which will not be very recurring. So recurring के basis पे you divide your receipts or expenditure on the basis of into the sub buckets of whether it is revenue receipts or capital receipts. Then let's talk about expenditure के केस में भी सेम चीज हो सकती है। You can have recurring expenditure का for example subsidies हो गया, interest payments हो गया, we understood all of those terms. And then capital expenditure which is kind of one time items. For example, this year the government had to spend a lot of money on one area. Can you guess? काफी फोकस है कि इस साल एक सेक्टर का काफी ज्यादा बजट इंक्रीज हुआ था कैपिटल एक्सपेंडिचर में। गाइस, any idea? Suna? It's related to our borders. That's a guess. Borders. Not. Nope, guys. Defense, exactly, Shanvi. Defense पे हमने ज़्यादा spend किया है. Why? Because of what incident? Guys, हमें emergency basis पे, yes, exactly. The India-China conflict at the LAC, line of actual control पे जो हुआ, उसकी वजह से we spent a lot of amount on military expenditure. ठीक है, we'll see that. So, and I'll send you certain articles today, and what I'll also do, guys, I'll send you a link for aspiring bureaucrats. Now what aspiring bureaucrats is a WhatsApp group जिसमें around 500 students हैं, दो groups हैं, aspiring bureaucrats 1 and aspiring bureaucrats 2, in which every day I put in articles. ठीक है, एवरी डे करंट अफेयर्स के जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, एवरी मॉर्निंग आई पुट देम। अगेन there are admin restrictions, you can't post messages on it, but I will every morning put some articles, but put it on mute because I usually send articles at around 5 o'clock, 5:30 in the morning, so it's an arbitrary time. So usko mute, and if you have time just go through those articles. It's usually business standard articles that I send. I'll send you the link for that WhatsApp group. Chalo. Then and today I'll be sending a lot of messages on the budget and the analysis of the budget. So if you see receipts and capital expenditure, we talked about this. Then your receipts are further divided into tax and non-tax. Tax is where your incidence and the burden is this on the same person. Non-tax where the burden can be shifted. Then tax can be further divided into direct taxes and indirect taxes. Non-taxes के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से non-tax आते हैं। For example, you would have interest received, you would have something something like fines. तो ये सारी जो इनकम है, स्पेक्ट्रम सेल्स यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, we'll talk about all of these proceeds as well. Then you have debt making, capital receipts and non debt making. Debt making वो होती है जहाँ पर liability create होती है, जहाँ liability create नहीं हो रही वो non debt making है। ठीक है,
Then expenditures, we have already talked about that there are two major types of expenditures. So this is a broad overview that we had already studied in the previous class. Now let's see what has happened in this budget. So if you see your revenue, your revenue account, you expected this many crores. Now there is another concept, guys. कई बार क्या होगा इंडियन इकोनॉमी में there are multiple ways in which people tell you data. ठीक है. So one of the ways that I realized that you can actually understand data is either you can convert it into lakh crores. So for example this is 20 lakh. ठीक है. तो एक तो आपको साइज ऑफ द इकोनॉमी पता होना चाहिए. ठीक है. साइज ऑफ द इकोनॉमी इज राइट नाउ समवेयर अराउंड 194 लाख करोड़. सो या तो इतना बड़ा फिगर को आप इस तरीके से लिखो. ठीक है. बट दैट बिकम्स वेरी वेरी टीडियस टू अंडरस्टैंड. तो या तो आप लिखो 194 लाख करोड़. ठीक है. सो दिस इज, ये आपका 194 लाख करोड़ का आपका जीडीपी. ये लाख हो गया ना ऑलरेडी, इतना 194 लाख हो गया करोड़ का आपका जीडीपी. एक इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है. बट द प्रॉब्लम बिकम्स कि जब आप व्हेन यू राइट इट लाइक दिस इट बिकम्स वेरी वेरी आई मीन इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस डाउन दैट इट्स अराउंड 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स. नाउ हाउ डू यू एक्चुअली कम अबाउट ऑल ऑफ दिस. सो प्लीज रिमेंबर, अगर मैं $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज लेके चलूँ, अगर मैं ये बेंचमार्क लेके चलूं, सो दिस टेल्स मी दैट 70 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ विल बी इक्वल टू $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन. सॉरी, ये समझ में आया गाइस? $1 ट्रिलियन will be equal to 70 lakh crores, guys. Yes or no? ठीक है. And I'm telling you a very basic distinction, very basic concept, because लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आती कि ये कैसे आ रहा है. और ये फिगर आपको पता होनी चाहिए कि ये 194 या 200 के अराउंड 200 लाख करोड़ के अराउंड हमारा पूरा कंट्री का जीडीपी है. $1 ट्रिलियन is this thing, and you can always remember that your $1 billion is equal to 7,000. ठीक है. ये एक फिगर अपने दिमाग में हमेशा रखना कि इस तरीके से हमारा डिवीजन चलता है. वेन एवर यू आर गिवन सर्टन थिंग्स इन करोड़, यू कैन इजिली कन्वर्ट इट बाय डिवाइडिंग बाय 70 एंड गेटिंग कि अच्छा ये बिलियन डॉलर्स में कितना है. ठीक है. तो ये बिलियन या ट्रिलियन डॉलर्स में कितना है. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. सो ये कुछ फिगर्स आई ऑलवेज आस्क पीपल टू रिमेंबर. एंड सिमिलरली ऑलवेज रिमेंबर कि 1 लाख, व्हेन यू से 1 लाख करोड़, it's $1.4 billion, around 1.3 $1.4 billion, because 70,000 crores will be equal to 1 billion. I mean, is not, sorry, it will be somewhere around $14 billion. Okay, because 70,000 crores will be equal to $10 billion. तो ये इस तरीके से you can probably remember few things, and it becomes easier to understand things in perspective कि अच्छा ये कितने बिलियन डॉलर्स में होगा ये चीजें. Now if you see, we estimated that we will get somewhere around 20 lakh crores, but we will end up, the estimate is that we will end up short by 5 lakh crores. 5 lakh crores से we will have a shortfall. एंड अगले साल भी वी आर एस्टिमेटिंग कि यहाँ से तो बढ़ जाएगा, बट अभी भी ये वाला जो एस्टिमेट था वो भी क्रॉस नहीं करेगा. ठीक है. एंड this is revenue receipts, guys. Revenue receipts I told you is because of two things: tax receipts, receipts and non-tax revenue. If you see tax में भी फॉल आया है, नॉन टैक्स में भी फॉल आया है मेजर. तो इन दोनों की वजह से आपका जो रिसीट साइड है, रेवेन्यू रिसीट साइड है, इसमें एक मेजर फॉल है. क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस और नो? देन लेट्स सी कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट्स के अंदर इफ यू सी, कैपिटल रिसीट्स में इंक्रीज क्यों हुआ होगा गाइस? Can someone tell me? We have already discussed everything, guys, yesterday. Capital receipts में increase क्यों हुआ होगा? Think about it, guys. So because these has increased because of the lack of revenue. हाँ, तो कैसी liabilities? Debt making liabilities, exactly श्रेया. So debt making liabilities आपकी increase हुई होंगी, and that is why you see कि आपका ये देखो borrowing amount आपको कितना करना था? आपको करना था 8 लाख करोड़. You are ending up with 18.5 लाख करोड़. आपका 10 लाख करोड़ से ज्यादा आपका इंक्रीमेंट हुआ है. दिस इज अ ह्यूज जंप. उसकी वजह से क्या हुआ होगा गाइस? दिस इज मोर देन ट्वाइस, ऑलमोस्ट 2.5 times. उसकी वजह से क्या होगा? कैन समवन टेल मी?
what is this implication show? एग्जैक्टली फिजिकल डेफिसिट, आई विल जस्ट शो यू। हमने फिजिकल डेफिसिट क्या बोला था, हमने प्लान किया था 3.5% का, इट्स एंडेड अप एट 9.5% गाइस। इट्स अ ह्यूज, वी वर एक्सपेक्टिंग, द एंटायर मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग somewhere around 7%, but this 2.5% increase is because this is a technical thing। आरबीआई ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट क्या करता था, इसको ऑफ बजट लाइबिलिटीज में दिखा देता था। फॉर एग्जांपल फूड सब्सिडी, आई टॉक अबाउट फूड सब्सिडी। तो फूड सब्सिडी को बजट में दिखाने की बजाय वो दिखा देता कि ये जो सब्सिडी दी है ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दी है, ठीक है, तो उसके अकाउंट में दिखा देता था। सो ऑफ बजट लाइबिलिटीज क्रिएट होती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो भी हमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देना है वो भी इस साल देके खत्म कर देंगे, तो इसीलिए वो लाइबिलिटी एक्स्ट्रा हो गई है। दिस इज बिकम 9.5%। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडियाज फेडरल फाइनेंस। 9.5%, एटलीस्ट आई हैवंट सीन एनी टाइम फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर 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 चेंज। और दूसरा चेंज ये भी आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ाया है। इफ यू सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और ये देखो यहाँ से यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा बढ़ रहा है। यू हैव टू रिमेंबर, लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू, लास्ट क्लास में आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस, दैट हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो 90:10 के रेशो में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 90 होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 होता है, और हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना चाहिए। द गवर्नमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू फोकस ऑन दिस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक दिस 15%, ठीक है। तो और कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो आगे जाके क्या होगा, लॉन्ग टर्म में यू विल गेट अ हायर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो आपका जो जो स्टेडी स्टेट, इफ यू टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स, तो आपका अपना स्टेडी स्टेट को और आगे पुश कर रहे हो, ठीक है, कि आपका पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा हो जाए। दिस इज अ मेजर फोकस विच द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस पर्टिकुलर ईयर। डू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। एंड इफ यू सी गवर्नमेंट को जो ये जो मेजर रेवेन्यू होना था, अदर रिसीट से जो पैसा आना था, ये पैसा आना था, ये मेजरली डिसइन्वेस्टमेंट से आना था। डिसइन्वेस्टमेंट से उसको बहुत कम पैसा आया। सो उसको नॉन डेट में पैसा कम मिला, नॉन डेट में उनको पैसा कम मिला, उनको रेवेन्यूज में पैसा कम मिला। the only compensating factor would have to be this thing। एंड एक्सपेंडिचर में आपका एक्सपेंडिचर बूम कर गया, शूट आउट कर गया। इफ यू सी आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम योर एंड फाइनेंस कमीशन ने भी कहा है कि ज़्यादा फंड्स दो स्टेट्स को। तो आपका एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। योर एक्सपेंडिचर साइड बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल इज इंक्रीजिंग। कैपिटल इसलिए भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इज डिफेंस। तो आपने अर्जेंट चाइना के रो के लिए आपने इंपोर्ट करना पड़ा आपको, इजराइल से, यूएस से, फ्रांस से। सो बिकॉज ऑफ दिस आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, आपके रेवेन्यूज आपके कम हो गए हैं, आपका नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स कम हो गए हैं। द ओनली वे टू बेसिकली मैच दिस एंटायर इक्वेशन इज ओनली इफ यू बोरो अ लॉट ऑफ अमाउंट। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, ठीक है गाइस, समझ में आया ये चीज? गुड। देन लेट्स सी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा जो था, हम प्लान कर रहे थे कि 2.5% हो जाएगा, बट इट बिकेम 7.5%। ह्यूज इंक्रीज, अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज, कि आपका 7.5% हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। आपका क्या कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, एज आई टोल्ड यू, वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया, इट्स बिकम 9.5%। एंड उसका मेजर रीजन क्या है कि आपको इस साल जो है बोरोइंग आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ी है। देख रहे हो 11,55,000 crores। This is basically this year's 2020-21 years borrowing, fresh borrowing। फ्रेश बोरिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपका प्राइमरी डेफिसिट बहुत ज्यादा। नाउ we are done all these concepts in the last class, so I hope you remember all of these। We understood what fiscal deficit is, we understood what effective revenue deficit is, and what other kinds of primary deficit and your revenue deficit is, ठीक है। let's now move on to a little detail। See, this tells you, this infographic tells you that where is your rupee coming from। if you talking about 1 rupee, तो हमारा जो वो रुपी कहाँ से आएगा, या तो रेवेन्यू से आएगा या फिर कैपिटल से आएगा। यही तो सोर्सेस थे गाइस, ठीक है। सो 2020-21 के अंदर वो रुपी कहाँ से आया। और अब हम 2021 की बात करें, दिस इज फॉर 2020, 21, 22, और ये पिछले साल का है। लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव, ठीक है। लेट्स सी दिस, हमारा मेजर
हमारा हमारा मेजर सोर्स जो रहा हमारा क्या होता है, अगर इफ यू टॉक अबाउट योर रेवेन्यू रिसीट्स, तो रेवेन्यू में टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेजर पैसा कहाँ से आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स. सो आउट ऑफ द 1 rupee दैट यू आर गेटिंग in your income side, 13 paisa is from corporation tax, 14 paisa is from income tax. यूजली कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा होता है, इनकम टैक्स कम होता है. इस बार इनकम टैक्स आप ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आप ज़्यादा ले पाओगे एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन टैक्स. ठीक है. देन so these are your two major direct taxes. These are your two major direct taxes which basically comprises of 27% of your entire revenue. क्लियर है गाइस ये चीज कि दिस इज योर टैक्स रिसीट्स, ये आपकी टैक्स. बाकी टैक्स में भी ये डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स है, ये दो मेजर डायरेक्ट टैक्स रिसीट्स हैं. देन यू हैव योर कस्टम्स, यू हैव योर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यू हैव योर जीएसटी. ठीक है. तो ये तीनों आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, all these three, and this comprises of your 26%. So if you see your tax to non tax, तो आप बेसिकली अगर आप देखो कि टैक्स कितना ले रहे हो, तो 26 plus 27 is basically the amount that you are raising from taxes of the 1 rupee that you are. 53 आपके पैसा जो है यहाँ से आता. देन दैट मीन्स बाकी जो 47 आएगा वो यहाँ से आएगा. ठीक है. और इसके अंदर नॉन टैक्स से 6 पैसा आ जाएगा. यू हैव योर नॉन टैक्स, तो बेसिकली 60% पैसा आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स से आ गया, 60%. एंड इफ यू सी द डिवीजन, टैक्सेस का डिवीजन भी ऑलमोस्ट सिमिलर. टैक्सेस का 50% पैसा डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है और 50% पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है. नाउ गाइस टेल मी, if we should increase direct taxes or increase indirect taxes, as a finance minister or as an economist, what would you suggest the government? आपको डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करना चाहिए? सोचो. हेलो हेलो गाइस, Yes, एम आई I am ऑडिबल? audible. यस. Yes. हाँ, आपको डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करने चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करने चाहिए? मेगा सेज इनडायरेक्ट टैक्स. एनीवन एल्स गाइस? एनीथिंग एल्स? कुछ तो होगा. अंशिका? Trying to increase direct taxes will be too ambitious. So maybe. नो टू एम्बिशियस तो ठीक है, बट एज एन इकोनॉमी आपके शेयर जो होना चाहिए वो डायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का होना चाहिए. और क्यों, किसका ज्यादा होना चाहिए? इट्स अबाउट इक्विटी. आई एम गिविंग यू हिंट, इट्स अबाउट इक्विटी. एक टैक्स जो है वो इक्विटी नहीं देगा. क्यों पलक? यू आर राइट, बट क्यों? Big sections of society will have to pay equal price, यस same एग्जैक्टली. price for one इसी को, commodity. यस एग्जैक्टली, इसी को हम And टैक्सेस में बोलते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्सेस. Even if I buy, suppose I go and buy a packet of chips, yeah, I go and buy a bottle of Pepsi. Whether I buy it, Mr. Ambani buys it, or a rickshaw wala buys it, everyone is paying the same amount of tax, irrespective of the income that you have. ठीक है. तो एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, अंबानी के लिए जो टैक्स पे करना पड़ा वो बहुत कम था, बहुत माइन्यूट अमाउंट. मेरे लिए भी कम था. बट हो सकता है एक बंदा जो 20 रुपए कमा रहा है और वो 2 रुपए टैक्स दे दे उसमें, तो उसने तो अपनी 10% ऑफ डेली इनकम उसने स्पेंड कर दी उसमें. सो इट बिकम्स अ रिग्रेसिव. ऑल योर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव टैक्सेस. योर डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव टैक्सेस. जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स. सो because of this concept, you should rely on more on direct taxes than indirect taxes. This ratio should be more towards direct taxes always. ठीक है. देन द अदर थिंग, अब आपका नॉन टैक्स में 6 पैसा, तो टोटल आपको 60% रेवेन्यू जो है आपको यहाँ से आ रहा है. रेस्ट 40% जो आपको आएगा वो कहाँ से आएगा? वो कैपिटल से आएगा, 40%. और उसमें आपका दिस इज 36 बेसिकली. ऑफ दैट 40%, 90% इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम बोरोइंग्स. ओनली 10% मनी इज कमिंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल कैपिटल. इसमें भी सबसे मेजर अमाउंट जो होता है वो डिसइन्वेस्टमेंट का होता है, मेजर अमाउंट. ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग गाइस. प्लीज रिमेंबर, दिस इज व्हाट वी आर प्रोजेक्टिंग फॉर 2021-22. दिस इज आवर प्रोजेक्शन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. अगर पिछले साल का देखो तो ये बजट है, पिछले साल का बजट एस्टिमेट्स. ठीक है. देन एक मिनट, होल्ड ऑन गाइस. हाँ, ये प्रोजेक्टेड है.
देन उसके बाद हमारा पैसा जाता कहाँ पर है, लेट्स सी दैट बेसिकली वी आर गोइंग इनटू एक्सपेंडिचर साइड. एक्सपेंडिचर साइड में यू कैन डिवाइड इट इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल. तो देन यू हैव अदर स्कीम्स एज वेल. हम स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर भी देखेंगे. लेट मी शो यू अनदर. ये देखो, एक्सपेंडिचर को क्वालिफाई करने के दो तरीके मैंने आपको बताया था ना. एक्सपेंडिचर को यू कैन सी इट थ्रू नंबर ऑफ वेज. एक्सपेंडिचर कैन बी सीन, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. कोई भी देख लो, 26,86,000, वो तो इसमें भी 26,86,000 वो सेम फिगर मिलेगी वैसे तो रिसीट से भी, बट टोटल एक्सपेंडिचर ये देखो. यू आर बेसिकली सेइंग हम एक्सपेंडिचर को कई तरीके से देख सकते हैं. लेट्स सी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. एक्सपेंडिचर को देखने का वन वे इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल. Another way of looking at expenditure, another way to look at expenditure would be in this format. The format would be this, where you are saying that what is the expenditure. Expenditure basically becomes your center's expenditure and your transfers. ठीक है. सो व्हाट यू आर सेइंग इज एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू और कैपिटल की बजाय बोलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना एक्सपेंडिचर किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना ट्रांसफर करना पड़ा. ठीक है. अब वो ट्रांसफर कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे. वो फेडरल फाइनेंस के बारे में बात हो जाती है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर. बेसिकली फॉर एग्जांपल कॉलेज बनाया हुआ है, स्कूल बनाया हुआ है, या हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, तो उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो दैट इज कॉल्ड योर एस्टैब्लिश एक्सपेंडिचर. जो सैलरीज जा रही हैं लोगों को, पेंशंस जा रही हैं हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स को, या किसी को भी जो जा रहा है, वो सारा आपका एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है. देन यू हैव सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स. ठीक है ना. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ही स्कीम लगाई. फॉर एग्जांपल इन योर पॉलिसीज, इन योर ओवरऑल स्कीम्स, पॉलिसीज में you have central sector, then you have centrally sponsored. centrally ये लिखा हुआ centrally sponsored schemes. सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का एरिया है. फॉर एग्जांपल रेलवेज, ठीक है, या फॉर एग्जांपल फाइनेंस या डिफेंस. ये सेंटर के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर, लेट मी शो यू दिस लिस्ट. इसके अंदर अपेंडिक्स नहीं है. होल्ड ऑन गाइस, ट्राइंग टू फाइंड द अपेंडिक्स. हाँ, ये देखो. if you see this schedule, your constitution is divided into number of schedules and then you have all your articles. ठीक है. तो this is how your schedule works. See chapter कौन सा, schedule features. Yeah. So this is your constitution divided into articles, and articles are divided into basically parts, and उससे पहले आपके schedules हो जाते हैं फिर उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के. इफ यू सी, ये मेजर आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. इफ यू रिमेंबर, हमने कल बात करी थी, उसमें आर्टिकल दे नहीं रखा, ये बात करी होगी हमने. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइस, रिमेंबर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. देन उसके बाद आई टोल्ड यू अबाउट grants from union to certain states. remember हमने कहा था बात grants in aid for capital creation, ये रहा, and finance commission 280. ठीक है. now schedules. so if you see schedules, 7th schedule basically is where the division of power takes place, which talks about कि कौन सा एरिया किसके अंडर आएगा, किसकी jurisdiction में है. So you have list 1, you have list 2 and you have list 3. list 1 यूनियन लिस्ट में वो आइटम्स होती हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का fiefdom होता है. इट कैन बेसिकली से दैट कौन सी चीज जो है वो उसके ऊपर वो लॉ बनाएगा. देन यू हैव स्टेट लिस्ट वेयर द लिस्ट वेयर थिंग्स आर अंडर द हैंड ऑफ द स्टेट्स. ठीक है. लेट मी शो यू उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स भी आती हैं. ठीक है, कोई नहीं. सो स्टेट लिस्ट जो है, I'll show you another उसमें ये लिस्ट भी मिल जाएंगे आपको. सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट या मेडिकल सर्विसेज, ये सारी स्टेट लिस्ट के अंदर है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा. तो जहां जिस आइटम्स पे यूनियन का fiefdom है, जिस आइटम्स में यूनियन
यूनियन लिस्ट में है उसमें पॉलिसीज कौन बनाएगा, उसमें यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगा। तो जैसा आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ समथिंग लाइक फाइनेंस के ऊपर, या स्टैंड अप इंडिया, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है या स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, या फिर यू हैव जन धन योजना जैसी स्कीम्स हैं, ठीक है। तो ये, या अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स, ये फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं, या डिफेंस रिलेटेड कोई स्कीम होगी वो यूनियन लिस्ट की है। सो एवरी प्रोग्राम दैट वी हैव, एवरी प्रोग्राम दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रन, if it comes under the union list वाले subjects, these policies, ये जो policies होंगी उनको हम बोलते हैं central policy, central sector schemes। इन सारी schemes को हम बोलते हैं central sector schemes। So if I have to divide it, and again guys, I told you no one will explain it to you, these technical terms, so please note it down, that if you have your schemes का division जो होता है, if you have to delineate it, you can have central sector schemes. These central sector schemes are basically based on union list के अंदर जो है। Then you have something called centrally sponsored scheme. These centrally sponsored schemes are basically those schemes, these are those schemes on state list but made by union। और ये जो हैं these centrally sponsored schemes are of three major types, core and optional। I'll tell you each one of them. Here the sharing ratio is 75:25. Here the sharing ratio is 60:40, and the sharing ratio is 50:. ये यूनियन गवर्नमेंट का शेयर और ये स्टेट। So let's see this. What is this? Now, what the union government has done, the union government has actually done, and I'm talking about Sakaria Commission report में, मतलब ये जो words मैं use कर रहा हूँ, these are not my words, these are words from interstate relation commission scheme. So the latest one was 2007 में, there was MM Punchi Commission. It's a 4,000 page report, but people who study public finance and public economics have to study those, especially public administration अगर आपका UPSC में optional हो। So I happen to go through the entire report, and one of the key things that is noted in that report is that states say that ये जो आप centrally sponsored schemes बोल रहे हो, these are fraud on the constitution। ये अल्टीमेटली आना किसके चाहिए था, ये स्टेट लिस्ट पे आपने स्कीम बना दी है। यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली, आप कह रहे हो बीजेपी गवर्नमेंट जो है सेंटर पे, वो स्टेट लिस्ट पे कोई स्कीम बना देता है और फिर उसके बाद स्टेट को कहता है कि आप अभी पैसे कंट्रीब्यूट करोगे। अल्टीमेटली ये स्कीम जो होनी चाहिए वो तो स्टेट लिस्ट पे होनी चाहिए। द एग्जांपल कुड बी NREGA। NREGA इज रूरल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए ये स्कीम है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, इसकी स्कीम कौन बनाना चाहिए, ये स्कीम बनाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नरेगा बनाया हुआ है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, CSS, और ये उसके अंदर ये स्कीम जो है ये कोर स्कीम है। ये स्कीम कोर स्कीम है। तो कोर स्कीम के लिए गवर्नमेंट कहेगी कि 60% पैसा यूनियन गवर्नमेंट दे देगी, बट 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपीज यूनियन गवर्नमेंट दे देगी, 40 रुपीज स्टेट को खर्च करने पड़ेंगे। तो स्टेट्स के अपनी जो स्कीम्स, खुद की स्कीम्स होती हैं, उनके लिए पैसा लगाने के लिए ज्यादा पैसे बचते नहीं है। तो इसीलिए कई स्टेट्स बोलते हैं दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये समझ में आएगा, ये दो टाइप ऑफ स्कीम समझ में आई पक्का एवरीवन। दिस इज समथिंग व्हिच विल अगेन नॉट बी टोल्ड टू यू थ्रू आउट योर कोर्स, और कहीं आपको रीडिंग में भी नहीं मिलेगा ये सारा मटेरियल, नीदर हियर नॉट इन UPSC। So this is one of the major problems। And then if you come here, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह पे जो पैसा खर्च हुआ, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च हुआ, वो सारी चीजें। तो बेसिकली दिस हैज एवरीथिंग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है। देन यू हैव सर्टन ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर्स कौन से हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, रिमेंबर 40% पैसा या 50% पैसा या 25% पैसा आपको देना है डिपेंडिंग अपॉन दी स्कीम, कौन सी स्कीम किसके अंडर है। देन फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स बोलता है, फाइनेंस कमीशन कहता है कि आपको टैक्स रेवेन्यू में से कुछ पैसा इधर देना है एंड प्लस ग्रांट्स इन एड देने हैं आपको पैसा, और बाकी जो आपने ग्रांट्स लोन्स एंड ट्रांसफर्स किए होंगे पर्टिकुलर स्टेट को, किसी स्टेट को लोन दिया होगा, किसी स्टेट को ग्रांट दिया होगा, किसी स्टेट को ट्रांसफर किया होगा ओवर एंड अबव वो जो फाइनेंस कमीशन ने दिया है, all of that will be under this. So this is one another way to highlight your schemes. So you can write central government's expenditure, and the other thing is your transfers. These transfers can be centrally sponsored scheme, your finance commission transfers, other grants, loans and transfers. And your central government expenditure could be central sector schemes, establishment expenditure, and your other central expenditure. You cannot divide this into revenue and capital क्योंकि वो अपने आप में सारा डिवाइडेड होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो राइट योर एक्सपेंडिचर्स, ये सेम तरीका है। योर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये हम बाद में देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करा जाता है, ठीक है। देयर समथिंग कॉल्ड क्रॉस बजटरी सपोर्ट एंड देयर समथिंग कॉल्ड IEBR, ठीक है, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। देन तो इफ यू सी दिस, हमारा टोटल उस अमाउंट में से हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 13 पैसे खर्च हो गए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे हमारे 9 पैसे खर्च हो गए। देन ये आपकी दो मेजर शेयर्स हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी अदर जो है इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा शेयर होता है, सब्सिडीज एक बहुत बड़ा शेयर होता है, डिफेंस एक बहुत बड़ा शेयर होता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेजर इशू। एंड देन अपने ट्रांसफर्स की बात करी, ट्रांसफर्स के अंदर स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 16 पैसा एंड फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स 10 पैसा। सो 26 पैसा तो ये ऐसे ही सीधा सीधा निकल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ से। एंड बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे भी ये 9 पैसा इन्हीं को स्टेट्स को जाएगा। So this is how you can probably divide the entire money into, कि ये इस तरीके से खर्च होने वाला है। We talked about deficits and if you see the deficit trend, देखो हमारा deficit trend जो है ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। This increase, can someone tell me कि इस साल में इंक्रीज क्यों हुआ होगा 2009-2010? Any guesses guys? ये इंक्रीज क्यों हुआ होगा? आपने फिस्कल स्टिमुलस दिया था, किस वजह से स्टिमुलस दिया था 9-10 में? Exactly. The great financial crisis, and this is the great lockdown. So great financial crisis ये आपने पहले करा, फिर आपने उसके बाद दूसरा स्टिमुलस देने की कोशिश करी, पर उसके बाद आप कंसोलिडेट करते गए, अपना सारे डेफिसिट्स को आप कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया अंडर FRBM। I'll tell you what FRBM is, Fiscal Responsibility and Budget Management Act। बट उसके बाद 2018 के बाद से आपका ये डेफिसिट्स फिर से इंक्रीज करे एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेट लॉकडाउन ये अगेन बहुत ज्यादा शूट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे शूट कर गया, ठीक है। हाउ डू यू बेसिकली बोरो मनी? अगर बोरोइंग को देखो तो बोरोइंग कहाँ से होती है? बोरोइंग्स हो सकती है, डेट रिसीट्स हो सकते हैं, वो कहाँ से हो सकता है? मार्केट बोरोइंग्स हो सकती है, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो सकती है, स्टेट प्रोविडेंट फंड से ज्यादा पैसा नहीं आता तो इससे बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है। अदर इंटरनल डेट भी ज्यादा नहीं होता। इस साल एक्सटर्नल डेट काफी बड़ा है, ठीक है, एक्सटर्नल डेट भी आप काफी उठा रहे हो इस साल। बट मेजरली इफ यू सी द मेजर चेंज इज बेसिकली इन द मार्केट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट, ठीक है, अपने बॉन्ड्स प्रिंट करके। सो दिस इज अबाउट द एंटायर थिंग। वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर इन डिटेल। हम रिसीट्स का पूरा डिविजन देखेंगे ये वाला, एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, जिस इन केस अगर डिटेल्ड न्यूमेरिकल आ जाए, सो यू शुड नो दिस। बाकी I think you can go through this particular entire document and you will get to know a lot of insights कि अच्छा कहाँ हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी हेल्थ में हमारा मेजर एक्सपेंडिचर इस साल चेंज हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। आपको डिफेंस यहाँ दिख नहीं रहा, नहीं तो आपको डिफेंस में दिख जाता कि डिफेंस में मेजर चेंज हुआ है। देन
ये भी इंटरेस्टिंग एक इंसाइट है। देखो मैंने आपको बताया ना कोर ऑफ कोर स्कीम्स, अच्छा NREGA इज अ कोर ऑफ कोर, तो 75 मैंने आपको बताया ना कोर ऑफ कोर स्कीम्स एंड you have major central sector schemes, then you have optional schemes। क्यों नहीं है इधर ऑप्शनल स्कीम्स? नहीं है, नहीं तो 2 स्कीम्स ऑप्शनल में होती थी। आई नीड टू चेक कि वो मर्ज हो गई क्या। ठीक है, समझ में आया गाइस? क्लास समझ में आई?